नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विभाजन का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण के लिए देशवासियों से आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 3 नए पुलिस स्टेशनों का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देते हुए लंबित परियोजनाओं को त्वरित गति से किया जा रहा है पूरा। असम में प्रतिबंधित उग्रवादी गुट उल्फा ने संघर्ष विराम और 3 महीने के लिए बढ़ाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उल्फा के इस कदम को राज्य में शांति स्थापित करने की दिशा में एक नया सकारात्मक पहल बताते हुए उनसे विकास की मुख्यधारा में लौटने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्माद में हुई हिंसा और घृणा के कारण लाखों लोगों के भाई बहन विस्थापित हो गए थे और उनके अनेक लोगों ने जान भी गंवाई थी। श्री मोदी ने कहा है कि हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कामना करते हैं कि बंटवारा विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से यह समझने में मदद मिलेगी कि सामाजिक विभाजन और दुर्भावना के जहर को जड़ से खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि तभी एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। अपने एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए पिछले 75 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की चर्चा की है। Today is the glorious day of Azadi Ka Amrut Mahotsav, when we celebrate our great country's 75th Independence Day. I convey my heartfelt greetings to the people of Arunachal Pradesh. Today is the day to celebrate our freedom from oppression, to remember the sacrifices made by our ancestors, to look back at the journey of 75 years and to look forward to the journey ahead. On this very day, 15 August of 1975, an elected legislative assembly for Arunachal was constituted. Since then, we have got new railway links, a large road network, schools and higher education institutes. Soon we are going to mark our renewed presence in the Indian aviation scenario when the Holongi airport is operational in 2022. However, as we recall our sacrifices and celebrate our achievements, we must also take new actions, have new ideas and renew our resolve for continuous betterment of our country and our state through our service to our fellow citizens. Last 2 years, we had a difficult phase due to COVID-19 pandemic. However, with the support and cooperation of each one of you, especially all frontline workers, we have managed not only to survive but also maintain the peace of development. I would like to remind you all that the pandemic is not yet over and we cannot let our guards down. Let us all get vaccinated and strictly follow the COVID-appropriate behavior. Health and education are the two pillars on which the foundation of a society is built. At the time of independence, our state has only 14 schools. Today, we have nearly 4,000 schools. We have taken up 450 crores mission to upgrade all the district hospitals, and we intend to go further in healthcare infrastructures. This year is the year of education. Focus will be given on teachers training and digital initiatives. Recently, we have launched the new integrated web portal, which is equipped with innovative modules like Know Your Teachers and Register Your Issues and Grievances. Our vision is to impart quality education and to provide employment opportunities to the educated youth and deserving youth of the state. A few days back, under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, a historic decision was taken by the Parliament in which the list of scheduled tribes of Arunachal Pradesh has been modified to include the indigenous nomenclature of Monpa, Sajolong, Sartang, Tai Khamti, Mishmi Kaman, Mishmi, Miju Mishmi, and Idu Mishmi,
Tararon, Digaru Mishmi, Nokte, Tangsa, Tussa, and Wangcho in the Constitution. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 3 नए पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें चिंपू, नीति विहार और पापू हिल्स पुलिस स्टेशन शामिल है। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, स्थानीय विधायक तेजी कासो, राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल को मजबूत किया जा रहा है और सभी लंबित विकास कार्य त्वरित गति से पूरे किए जा रहे हैं। श्री खांडू ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य सचिवालय ईटानगर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में निपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच 120 मेगावाट क्षमता की नाफरा और 90 मेगावाट क्षमता की न्यू मेलिंग जल विद्युत परियोजना के विकास से संबंधित समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के चयनित 31 स्टार्टअप्स को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। दिया कि जितने भी जो पेंडिंग काम है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसको फास्ट ट्रैक में डालना जरूरी है। और सरकार के ओर से आप सबको पता है कि 2019 इलेक्शंस के बाद में हमारा जो प्रायोरिटी रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, नॉट ओनली इन मैन पावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और इक्विपमेंट का लेवल में भी। आज डीजीपी साहब अपने खुद का एक्सपीरियंस, काफ़ी एक्सपीरियंस ऑफिसर है, उन्होंने काफ़ी जगह सर्व भी किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पूरे कंट्री में कम से कम टॉप 5 में अपना अरुणाचल पुलिस का पोजीशनिंग है इन टर्म्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज। तो ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। एक तो ड्रग मीनेंस के बारे में मैं बहुत पहले से ही जहाँ भी जाता हूँ अक्रॉस अरुणाचल, मैं सभी जनता को भी अपील करता हूँ, आया हूँ, सभी अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपील करता आया हूँ कि ये ड्रग मीनेंस को हम लोगों को अभी बहुत गंभीरता से देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग सरकार चला रहा है, आज पावर में है, तो हम लोगों का जो विल पावर जो है अभी हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, अभी दिखाना चाहिए। नहीं तो वन फाइन डे सब तो एक्स होके बैठ जाएगा। जब एक्स या फॉर्मर होके बैठने के बाद आपके पास विल तो होगा, लेकिन तब तक पावर नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सरकार में जो बैठता है उसको विल पावर एग्जर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरुणाचल का जनता का काफ़ी वो एक एक्सपेक्टेशंस है इस सरकार के ऊपर में कि एक रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करेंगे। और मैं ये भी बताना सर, आपने बोला था कि अपना प्रदेश को अगर डेवलपमेंट करना है तो सबसे आगे शांति लाना है, और शांति के लिए जो भी चीज़ सहायता सरकार से चाहिए उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, पोस्ट क्रिएशन से लेके, प्रमोशन से लेके, हम लोग इस माने 2 साल में करीब 800 लोगों को हम लोग डिफरेंट रैंक्स, पुलिस का डिफरेंट रैंक्स को हम लोग ने डीपीसी किया और प्रमोशन दिया है। सर, आपके नॉलेज के लिए जो नए पुलिस स्टेशन 2 साल में बने हैं, तो 2 नए पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग अरुणाचल प्रदेश में तैयार हुई है, जो कि चांगलांग, मियाओ, जयरामपुर, विजयनगर, मनमाओ, नामपोंग, नामतोक और बोरदुरिया के TCL रीजन में, और ईटानगर पुलिस स्टेशन की मेन बिल्डिंग पिछले 2 साल में 9 पुलिस स्टेशन पुलिस डिपार्टमेंट को डेडिकेट हुआ है। इसके अलावा सर, जिनमें PS शांतिपुर जो रोइंग में है, PS जोलंगमुख कामले, PS कामेंगबाड़ी वेस्ट कामिंग, PS मरियांग अपर सियांग, PS खेनवा ईस्ट कामिंग, PS याचुली लोअर सुबनसिरी, और आज 3 पुलिस स्टेशन कैपिटल में चिंपू, नीति विहार और पप्पू नाला। कुल मिला के सर 9 पुलिस स्टेशन ये भी हमारे ऑपरेट हो गए। पिछले 2 साल में सर 6 वुमेन पुलिस स्टेशन तैयार हुए हैं जो आज काम कर रहे हैं। उनमें ईटानगर, तवांग, सेप्पा, जीरो, पासीघाट व तेजू। असम में उग्रवादी संगठन उल्फा ने संघर्ष विराम को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में राज्य में किए गए विकास के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा है कि पिछले वर्षों की तरह इस बार उल्फा ने बंद या स्वतंत्रता दिवस समारोह के बहिष्कार का आह्वान नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने उनके इस कदम की सराहना की है और कहा है कि राज्य में शांति स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने उल्फा प्रमुख परेश बोरुआ से संघर्ष विराम जारी रखने का अनुरोध किया और विकास की मुख्यधारा में लौटने की भी अपील की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उल्फा ने संघर्ष विराम की घोषणा कोविड के मद्देनजर की थी। স্বাধীনতা দিৱসটো বিশেষকৈ 15 আগষ্টত
প্ৰচলিত যি বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ নিয়ম আছিল তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ পৰা এইবাৰ সেই বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ পৰাও আলফা বিৰত আছে। কোভিড পেণ্ডেমিকৰ সময়ত আলফাই লোৱা ব্যৱস্থা নিশ্চয় প্ৰশংসনীয় আৰু এই পেণ্ডেমিকৰ গুৰুত্ব বুজি আজি চৰকাৰ, ৰাইজ, দল, সংগঠন সকলোৱে যি ধৰণে কোভিডৰ বিপক্ষে নামি পৰিছে সেয়া অত্যন্ত আদৰণীয়। এই যুদ্ধবিৰতি স্থায়ী হওক আৰু আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আলফা ৰাষ্ট্ৰৰ মূল খুঁটিলৈ সন্মানেৰে সৈতে ঘূৰি আহক, তাক মই নিশ্চয় কামনা কৰিম। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज देश के 75 शहरों में पैडल फॉर इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से अकबर रोड तक साइकिल चलाई। श्री मंडाविया ने कहा है कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा तो है ही, इससे ईंधन की भी बचत होती है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में साइकिल चलाने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार साइकिल चलाने को भी प्राथमिकतापूर्ण खेलकूद का एक हिस्सा मानती है और भारत ओलंपिक में भी साइकिलिंग में पदक जीत सकता है। के लिए कम से कम आधा घंटा देने का आग्रह किया। हम 75वें वर्षगांठ पर देश के लोगों को जागरूक करें और कहें पैडल फॉर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। एंड पैडल फॉर हेल्थ होगा, साइकिल चलाएंगे या पैदल भी चलेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, तब भी कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे और उससे देश की सेहत पर भी फर्क पड़ता है। जितना अस्पताल पर बोझ कम पड़ेगा उतना देश पर भी बोझ कम पड़ेगा। पैडल फॉर हेल्थ ये बहुत बड़ी बात है और जो हमने कई जगह में जो अर्बन डेवलपमेंट का प्लानिंग होता है उसमें साइकिलिंग का ट्रैक, साइकिलिंग का लैन, ये जो धीरे धीरे जो आ रहे हैं ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। साइकिलिंग को प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में लाया। पहले साइकिल जो है, साइकिलिंग जो स्पोर्ट्स है ये अदर स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते थे। तो हमने कहा कि यार इतना बड़ा देश में इतने लोग साइकिलिंग करते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, कभी हम जरूर ओलंपिक तक जा सकते हैं, मेडल भी ला सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईस्ट सियांग जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ईस्ट सियांग जिला ओलंपिक संघ और खेल एवं युवा मामलों के विभाग द्वारा आज पासीघाट में इंडियन इंडिपेंडेंस साइकिल रैली आयोजित की गई। इस रैली के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ईस्ट सियांग जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तामत गामो ने कहा है कि देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में ये साइकिल रैली आयोजित की गई। हमारे जो भारत है, स्वतंत्रता होने के बाद, स्वाधीन होने के बाद 75वां ये सालगांठ है, वर्षगांठ है। तो इसके दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका ये सोच है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जहां जहां पर वो शहीद हुए हैं, जिनको अब तक भारत सरकार स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं भी दिया हो, उसको याद करना है और उनके आत्मा के ओर। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से पासीघाट में करीब 4 किलोमीटर दूर सिरकी वाटरफॉल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के एक हिस्से के बह जाने से इस मार्ग से यातायात बाधित है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को इस राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 80 मीटर हिस्सा मूसलाधार बारिश के कारण बह जाने से पासीघाट से पंगिन और आलो के बीच यातायात बाधित है। स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 13 के क्षतिग्रस्त हिस्सों का जायजा लिया और संबंध विभाग से अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ राजमार्ग के मरम्मत कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। जिला उपायुक्त ने लोगों से भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों में न जाने, पासीघाट पांगिन मार्ग से अगले 7 दिनों तक यात्रा न करने और रात के समय सतर्क रहने की अपील की है।
75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित किए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरप जिले में स्थित सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 103 आरसीसी मुख्यालय ने अशोक चक्र से सम्मानित शहीद हानपंग दादा के सम्मान में गुरुवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तारो मुइजे, हानपंग दादा के परिवार के सदस्यों के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर शहीद हानपंग दादा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई। गुड मॉर्निंग सबको नमस्कार। माननीय देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 48,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और करीब 35 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,87,673 से अधिक सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.45% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 53,61,80,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 63,80,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 166 नए मामले सामने आए और 271 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,289 है और रिकवरी दर 95.3% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,893 सैंपल एकत्रित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,51,022 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 6,83,850 टीके उपलब्ध हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य भर में विभिन्न संगठनों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 16 और वार्ड संख्या 19 में आयोजित स्वच्छता अभियान में सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। कॉर्पोरेटर तार नाचुंग ने लोगों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजधानी ईटानगर को स्वच्छ शहर बनाने में योगदान देने की अपील की। इधर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन द्वारा आज आयोजित स्वच्छता अभियान में फेडरेशन सदस्यों ने नगरीय क्षेत्र में इधर उधर पड़े कूड़े का निपटारा किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईस्ट सियांग जिले के बाकिन पर्तिन जनरल अस्पताल पासीघाट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गैर सरकारी संगठन आयांग, आदि बाने कबांग और आदि छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के तहत आयोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिंग दाई ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में स्वस्थ रक्त की मांग को पूरा करने में रक्तदान शिविर सहायक होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।